They always remember their destination, and when they are on spiritual pilgrimage, they always do charitable acts. On journey, they give donations, they help the poor ones, the weak ones. We are also on a spiritual journey. So Baba wants also to be donors. Some souls need love, some souls need support, some need cooperation. Some take benefit from the company. So always keep big heart, a generous heart, and help the co-travelers that they also find that journey is easy and pleasant. Because when I sit with the awareness as a soul in the center of forehead, I am just alone, I am one with one Baba. But the vibrations of my awareness make others also belong to Baba. So it's a beautiful balance of being alone and also being together with many co-travelers. We have heard, I have come alone, I have to go alone. But as soon as I come, I have big family. And even when I leave, I have many angels, many ancestor souls to continue with me. That once there is awareness of belonging to Baba, so at least one company and that company with all relationships never makes me feel alone. It is only that Baba is the one who is my strength and support. And I have to be then bestower with others. So all of us sit your space like a cave
try to centralize your energy so that there is no influence. Especially these days, there is influence of many energies. The pain and the sorrow, the fear, worries is the energy all over the world. And that energy very subtly influences the minds and intellects of the souls. It is like a dust storm, invisible, could affect the third eye, could affect the mind and intellect. So I have to be very careful not allow any weak sanskars to come but remain very stable, determined, and take support only from Baba. So keeping this thought, take drishti from Baba so that Baba can protect you, and from time to time purify, filter और समय प्रति समय अपने आप को from around पवित्र बनाएं और बाहरी सभी वाइब्रेशन से अपने आप को मुक्त करें। just pure energy, very love. सिर्फ बहुत ही शुद्ध वाइब्रेशन, बहुत ही प्रेम युक्त वाइब्रेशन। जसरी सुरुमा देखियो कि संगठन
से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मा को भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, मर्जोगे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्जोगे आत्मक स्वमान, आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। योग्य आप सभी कौन आगे इकट्ठे हुए हो, वही कलम पहले वाले देवा आत्माएं, ब्रह्मांड आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्रह्मांड आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं उसी स्वरूप से समान संपर्क में हो। हर समय ये करो, मुझे देवात्मा ब्रह्मांड आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य है, श्रेष्ठ सेवा है। दुआएं देना और दुआएं लेना। अच्छा, Om Shanti. ओम शांति। To the closeness of time. समय की समीपता प्रमाण Angel. अव्यक्त फरिश्ता बनो, Everywhere else. And सब तरफ से न्यारे और प्यारे, to be बाप के complete प्यारे। means to reach the संपन्न destination बनना of अर्थात your अपनी final अंतिम फरिश्ते destination. जीवन की मंजिल पर The पहुंचना। closer you come to the जितना final जितना destination, इस अंतिम मंजिल the के more नजदीक आते detached जाएंगे, you will be from उतना everything else सब तरफ से and न्यारे be और बाप loving के to the प्यारे other. बनते जाएंगे। When something you're जैसे doing कोई is चीज almost जब ready, बनकर तैयार it हो pushes जाती है you to the sides तो किनारा and छोड़ देती ends है। you. ऐसे जितना संपन्न Similarly, स्टेज के the closer समीप you आते come to the जाएंगे, complete stage, उतना the more you सर्व से become किनारा detached from होता everything जाएगा। else. To step तो away from सब बंधनों से, relationships, सब तरफ के लगाव से attractions, वृत्ति everywhere, द्वारा किनारा to होना your attitude अर्थात means to संपन्न become व complete संपूर्ण and बनना। perfect. Om Shanti. ओम शांति।
शांति ओम वेलकम शांति। आपका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है बिकम एन 3:15। समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो। सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे। अब हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। Okay, everyone. सब खुश हैं, सब ठीक है, सब ओके हैं। When I listen to Baba, जब मैं बाबा को सुनती हूँ, much self-respect. He teaches us to have बाबा हमें कैसे अपने स्वमान में स्थित होना सिखाते हैं। self-respect of soul consciousness. आत्म अभिमान रहने का So important. स्वमान कितना That इंटरेस्टिंग when है। soul consciousness, इसका मतलब ये है कि जब हम आत्म then अभिमानी हैं, self-respect will be तब हमारा स्वमान of one's elevated stage और अपनी एक श्रेष्ठ स्थिति का or being a deity in the beginning. स्वमान या तो शुरुआत में Baba is दैवी telling us होने that का स्वमान। बाबा हमें कहते हैं कि हम कौन हैं, what we have to do is हमें to क्या करना है। awareness बस that I am a deity soul. इस स्वमान की हमें स्मृति रखनी है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं So देवी when there is आत्मा soul हूँ। consciousनess, तो there जब is elevated आत्म awareness. अभिमानी स्थिति है और उसके साथ ही साथ Elevated awareness हमारी of श्रेष्ठ the self. स्मृति है, ये श्रेष्ठ स्मृति Then कि the मैं quality of कौन हूँ, self-respect तो हमारे स्वमान की will be completely different. क्वालिटी बहुत ही One is अलग होती in है। an ordinary way to have self-respect. एक तो है But कि when बहुत we ही connecting with the awareness साधारण भाव से हमारा स्वमान हो, elevated and और deity एक दूसरा है कि बहुत ही श्रेष्ठ स्वमान हो कि मैं दैवी it's a आत्मा kind of हूँ। combination of तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है दोनों का। awareness of one's एक हमारी स्मृति, as अपने elevated बारे में soul स्मृति deity, कि हम श्रेष्ठ है, हम दिव्य है, and then have self-respect. और अपने अंदर So ये it's स्वमान very है। definitely तो ये दो beautiful experience. बहुत ही सुंदर अनुभव So है। we take it for our homework. तो आज हम अपने लिए यह होमवर्क लेते हैं That self-respect. कि हम ये स्वमान में स्थित होकर क्या अनुभव करते हैं। On our journeys, लेकिन हम जैसे हमारी ये रूहानी यात्रा में हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, हम ब्राह्मण से our फरिश्ते बन signals रहे are हैं। actually like directions. अव्यक्त सिग्नल्स जो बाबा हमें देते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए एक डायरेक्शन है, और हमें सदा डायरेक्शन चाहिए जब हम यात्रा पर होते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं या मुसाफिरी पे हैं। Stage of perfection, which is your तो बाबा हमें destination. कहते हैं कि हम अपने What will be your favorite फाइनल stage? मुकाम Where पर will be पहुंच रहे हैं, जो हमारा Baba says that लक्ष्य है। see one is making बाबा effort, कहते हैं कि देखो, other is an एक effort है, to एक आत्मा है जो पुरुषार्थ कर रही है और दूसरी आत्मा जो प्रयोग कर रही है। we want to be detached. और अगर हमें This effort, साक्षी होना है, डिटैच्ड होना है when you will become complete अपने and प्रयोग से, तो you बाबा will कहते become हैं detached. कि जब हमें अपने आप से जब हमें डिटैच होना है, Is I want to be detached. आप समझते हैं कि एक बात यह है कि हमें साक्षी होना है, Becoming perfect, और दूसरी I will बात be यह है detached. कि मैं संपूर्ण बन रही हूँ, Like Baba तो gave मैं example that anything डिटैच like रहूंगी। baking or cooking, जैसे बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम then when बेकिंग कर रहे you होते have हैं या हम कुकिंग कर रहे you होते bake हैं, too, no?
तो जब खाना तैयार हो जाता है तो वो थोड़ा बेक भी हो रहा होता और ऑटोमेटिकली जब वो खाना तैयार हो जाता है तब वो बर्तन से किनारे छोड़ देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैं संपूर्ण बन जाती हूँ तो मैं अपने आसपास के सभी किनारे बहुत ही स्वतः छोड़ देती हूँ। तो मैं अपने आप ही स्वतः सब किनारों से मुक्त होकर बाबा की प्यारी बन जाती हूँ। तो मुझे क्या करना है ताकि मैं डिटैच हो जाऊं और संपूर्ण बन जाऊं। तो इस तरह की डिटैचमेंट कभी हमारे लिए दुख की बात हो सकती है, लेकिन ये बाबा कहे कि ये दोनों तरफ से है कि हमारे खुद के अटैचमेंट और दूसरों के हमारे साथ से जो अटैचमेंट है वो दोनों। जब हम ये अनुभव करना शुरू करते हैं कि हम फाइनली हम डिटैच हो रहे हैं, उसका मतलब ये कि हम संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम बाबा से प्रेम पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लवली बनते जाते हैं, हम डिटैच बनते हैं और हम लवली बनते जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम किससे न्यारे बनते हैं। सब तरह के बंधनों से हम न्यारे बनते हैं। बाबा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि किसी के संस्कार, उनका स्वभाव, उनके कर्म, ये सब इच्छाओं से, उनके बंधनों से होते हैं, या तो वो बहुत ही स्वाभाविक है। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करना है और सभी अटैचमेंट से हमें अपने आप को दूर करना है। बंधन अपने पुराने कर्म से या पुराने संस्कार के वश भी होते हैं, या वो संबंध संपर्क से या प्रकृति से। तो बाबा उसे बंधन कहते हैं, लेकिन लगाव बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है लगाव। बंधन हमें दिख सकता है, लेकिन जब हमें किसी के लिए बहुत प्रेम होता है, बहुत पसंद होते हैं, कोई हमें कभी मदद करते हैं, हमें सहारा देते हैं, तो ये बहुत ही उसमें सूक्ष्म लगाव है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि लगाव वो एक हमारे वर्ताव के स्वरूप में भी होता है। तो हमारा जो वर्ताव होता है वो हमेशा न्यारेपन का होना चाहिए। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, बंधन, लगाव और हमारा जो नजरिया है, ये सब लगाव को देखने का। तो अभी हमारी जो संपूर्णता है, वो संपूर्णता हमारी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा महसूस होती है, क्योंकि अगर मैं वो श्रेष्ठ आत्म अभिमानी स्थिति के भान में नहीं हूँ, तो मेरे अंदर की सभी कमी, कमजोरियां, पुराने संस्कार, वो सब बाहर आते हैं। मैं दादी जानकी जी का एक क्लास सुन रही थी, तो दादी जी ने उसमें क्लास में कहा कि अगर मुझ में कोई कमजोरी है तो मैं बाद में वो कमजोरी को संभाल लूंगी, ये सिर्फ एक ही कमजोरी है। तो दादी जी कहे कि नहीं,
आपको वो कमजोरी को अभी ही इस वक्त निकालनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो कमजोरी आपको अंत में धोखा दे सकती है। अंत में नहीं, किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। तो पहले तो हमें समझना है कि कमजोरी क्या होती है। तो मम्मा हमें एक उदाहरण देती थी। उस समय जैसे फ्लू होता था लोगों को, अभी भी होता है। तो फ्लू के समय बुखार तो चला जाता है, लेकिन कमजोरी तो रहती है। तो मम्मा कहते थे कि जब हमें बीमारी होती है, कि हमारी बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो बीमारी का परिणाम कमजोरी है। हमारे अंदर कमजोरी रह जाती है। हम अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर उत्साह की कमी, उमंग की कमी होती है। हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं महसूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सशक्त हैं, तो अपने मन में बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प आते हैं। और बाबा ने जैसे कहा है कि इन दिनों सही यथार्थ सेवा है कि हमें शुभ भावना रखना, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो हम कैसे दुआएं लें और दुआएं दें? तो इसका मतलब ये है कि हम कैसे दूसरों में उमंग, उत्साह, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसा क्या करते हैं जिससे वो आत्मा को महसूसता हो, उस आत्मा को टच करें। वो नहीं देना कि जो मैं देना चाहती हूँ, लेकिन वो आत्मा को उस समय, उस वक्त किसकी जरूरत है, हमें वो देना है। क्योंकि दुआएं दिल से निकलती है, और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और हमें ये बहुत ही सरलता से करना है। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं और सभी को हम पसंद आते हैं, और जैसे कि कोई आत्मा बहुत ही सहयोगी है, और कभी भी हमें अगर जरूरत होती है तो हम उस आत्मा के बारे में सोचते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि हम अपने दिल से उस आत्मा को ऑटोमेटिकली ही दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं। तो जब हम उन्हें दुआएं देते हैं तो हमें भी इन रिटर्न, उनके बदले में भी हमें दुआएं मिलती है। तो क्या सरल है, दुआएं देना या दुआएं देना? अगर हम दुआएं देते हैं तो हमें दुआएं भी मिलती है, और अगर हम दुआएं नहीं लेते हैं तो हम दुआ दे भी नहीं सकते। तो जैसे बाबा कहते हैं कि यही सच्ची सेवा है। आज का जो अव्यक्त सिग्नल है कि हमें संपूर्ण बनना है, और उसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर के सभी कमजोरियों को छोड़ना है। बाबा ने कहा कि हमें सभी प्राप्तियों को सामने रखना है, और उनके लिए क्या चाहिए हमें उसकी भी स्मृति रखनी है। हमें सभी संपन्न संपर्क में हमारे बहुत अच्छे हो, हमारी प्राप्तियां बहुत अच्छी हो, और हमारी आत्मा बहुत ही, उसकी तंदुरुस्ती बहुत ही अच्छी हो। और हमारी आत्मा अगर शक्तिशाली है तो हमारा शरीर भी, देह भी बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा। तो आज मैं सोच रही थी कि जस्ट बाबा जो हमें कहते हैं हमें वही करते रहना है, उसी का हमें अभ्यास करना है, मनन करना है, और हमें क्या पुरुषार्थ करना है। और जब हम बाबा के बताए हुए
रास्ते पर पुरुषार्थ करते हैं तो हम उस मार्ग पर चलते हैं जो हमें संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। सभी शक्तियां, सभी गुण, संपूर्ण ज्ञान, सभी गुण, ज्ञान, शक्तियां, सब कुछ कंप्लीट मतलब संपूर्ण मतलब 100% हमें संपूर्ण बनना है। तो आज का बहुत ही सुंदर होमवर्क है कि हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, कि हमें संपूर्ण बनना है, सभी किनारे छोड़ने हैं और हमें सभी बंधनों से मुक्त बनना है। ओम शांति। According to the closeness of time, समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो, सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे। संपन्न बनना अर्थात अपने अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर पहुंचना। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे कोई चीज जब बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो सब बंधनों से, सब तरफ के लगावों से वृत्ति द्वारा किनारा होना अर्थात संपन्न व संपूर्ण बनना। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार, तो कल रविवार है और हमारा स्केड्यूल है सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:45, फिर मेडिटेशन होगा और साकार मुरली होगी 6 से 7:30, फिर मेडिटेशन है 7:30 से 7:45, भोग ऑफरिंग है 7:45 से 8। We will start the meditation at 6 p.m. तो In this- इसका आप ध्यान रखें कि कल हम 6 बजे मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे Change only for tomorrow. और ये because सिर्फ कल के लिए meditation ये hour चेंज है is क्योंकि 30 कल minutes मेडिटेशन only. आवर्स हैं। So we will तो do इवनिंग में this series हमारा जो within क्लास this है meditation hour. के पहले शुरू Remember, करेंगे। in this तो series वर्ल्ड we मेडिटेशन will आवर है 6:30 से 7:30 और उसके बाद इंग्लिश सीरीज और अव्यक्ति जर्नी होगी 7:30 से 8। तो आपका अव्यक्ति जर्नी में स्वागत है। अव्यक्ति मुरली 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ते बनने की प्रेरणा। Om Shanti. ओम शांति। 2nd April 1970. 2 अप्रैल 1970 संपूर्ण स्टेज की निशानियां। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की इतनी लाइनें बनी हुई है। अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की है। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी
कि तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट दिखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अंतिम अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते हैं? साफ और सच्चा, जिसमें सच्चाई और सफाई है, वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखनी है। 1 याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। यह 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? What result did Bap Dada give in these 4 aspects? हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही है लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास, बाकी तो 25 की कमी है। वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है और कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना, तो बाप दादा की भी परीक्षा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इस ही हिम्मत में रहते चलेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थी है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी वह नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलप कर सकता है। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसलिए यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं।
The link of courage breaks. अभी तक टोटल रिजल्ट में क्या देखा? It will be difficult to सर्विस grasp की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना if you maintain आता है, over the लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना you बहुत will receive extra कम boost. आता है। This is why समझा? Baba is making you make the last lesson साकार रूप में अनुभव देखा, till now. साकार रूप What में you सर्विस see की at first, जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। you know how to become an in charge in the subject of service, but you know very बच्चों में उनसे कितनी how to charge the कम body है। in बच्चों the को सिर्फ subject सर्विस of की service. ड्यूटी है, Do you लेकिन understand? साकार You रूप saw the में experience तो in सभी Sakar ड्यूटी थी। form. The Sakar form संकल्पों का सागर is था, responsibility in service. रिस्पॉन्सिबिलिटी के संकल्पों Children में have थे, so much फिर भी less than that. साकार की लहरों में देखते थे, वह सागर के तले में देखते थे। Children have the duty of service. बच्चों को लहरों में लहराना आता है, लेकिन तले में जाना नहीं आता। He always had thoughts उनका of सहज साधन पहले सुनाया कि but प्रैक्टिस करो। even then, अभी अभी he kept आवाज में seeing him आए, in the ways फिर of मास्टर the सर्वशक्तिमान or at बन, the bottom of the अभी ocean. अभी आवाज से परे। Children know अभी अभी how का to अभ्यास become करो। the waves, कितने but भी they don't कारोबार में know हो, how लेकिन to बीच hold बीच them. में एक सेकंड भी निकाल They कर were told इसका earlier जितना the अभ्यास, easy method जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना how you प्रैक्टिस must practice प्रैक्टिकल रूप humming to the बनता sound for जाएगा। a moment. And then प्रैक्टिस कम है, discovering a इसलिए vessel of प्रैक्टिकल light रूप नहीं। and going beyond sound. कभी सागर की Once लहरों you में, कभी तले में, यह You अभ्यास must करो। practice doing something in one आज विशेष बात यही चेक कर रहे no थे matter कि how बच्चों little में space जितना ही between. साहस है, उतनी The ही सहन more they शक्ति take a है। second in between and साहस practice रखने की this, शक्ति कितनी है और accordingly, सहन शक्ति you will कितनी है, become the practical form. यह देख रहे थे। You have जितना already जितना स्वयं experienced पुरुषार्थ में that संतुष्ट और स्पष्ट this होंगे, is the practical उतना form. और उनके आगे स्पष्ट However, दिखाई देंगे। you must अब practice पेपर this. भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, Sometimes, बाकी maybe पांडवों not की with the बात waves, रह गई। sometimes being at the bottom of the ocean. बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। Whether children have just as much औरों tolerance को न देख अपनी लाइन को तो देखते होंगे, वह लाइन को भी न देख अपने को देखते हो। to maintain courage एक and है how तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन और दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन। the more content and clear you are, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो? अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो। नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय कहाँ जाएंगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है, वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने, इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। And when you will not say the words, you only know. We know everything because we are Master Almighty authorities. All powers will become equal, and then we will become Master Almighty authorities. You have this much faith in the Father. You also have an intellect that has faith, and so
you will be victorious. You have faith in the intellect for the self and the Father. And so, where else would victory go? Victory follows those who have faith in the intellect. They do not chase after victory, but victory chases them. They even renounce the thought that they should become victorious. Acha, to be continued. Om Shanti.